सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आया सफल ताहू को गनिय जास रसन हर हर जस मुख भनिय आए बस है साधु कै संगे अनदन नाम त्यावह रंगे गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पेड़ मलिया सज्जन सच्चा पात सिर साहां साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत तलीनी पर दारा निंदिया रस रचयो राम भगत नह कीनी मन रे कौन कुमत तलीनी। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां जुगो जुगा टल गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख सरूप तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके दमदमी टकसाल दे मुख स्थान केंद्रीय स्थान हैडकुआटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे दमदमी टकसाल दे जथे विच 5 पीढ़ियां तो जिन्हों ने लगातार महान परोपकार करदियां सेवा की और अपने स्वासां दी पूंजी नूं सफल करते हुए पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए बहुत ही निर्मल अते गुरमुख आत्मा महान परोपकारी भगत सुच्चा सिंह जी के दुसहरे के समागम में आप हाजरी भर रहे हो। साध संगत जी भगत सुच्चा सिंह जी ने बचपन काल तो जथे संगत दे विच आ करके अपने जीवन की यात्रा आरंभ की। भावें के भगत जी का नगर खडूर साहिब सी क्योंकि जिथे खडूर साहिब 9 सतगुरु साहिबाना ने अपनी पावन पवित्र चरण छो बख्शिश की है। ऐसी महान धरती ते जन्म होना भी वड्डियां भागां दी निशानी है। और आप जी लगभग 15-16 साल की उदों उम्र होएगी जथा हर साल
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। 2-2.5 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਐਸੀ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੀਮਟ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ
कुछ सियाने सियाने सिंह इत्थों पासे हो गए। भगत जी नूं भी बहुत समा अज्ञातवास दूसरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ तरह अपना जीवन बतीत करना पिया। फिर जदों महापुरुष संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जी ने सारी सेवा संभाली, हालात साजगर होए, सारे सिंह आए और भगत जी भी इत्थे आए। भगत जी की फिर संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखों ने ये ड्यूटी लाई, सेवा लाई कि तुसी ਸਿੰਘਾਂ नूं गुरबाणी की संथ्या कराया करो। भगत जी ने उस दिन तो लैके लगभग 1986 तो लैके साध संगत जी लगातार अपने अखीरले दम तक, अखीरले श्वास तक ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की गुरबाणी की शुद्ध संथ्या करवाते रहे। छोटे छोटे भटंगी सियाने नौजवान सारिਆਂ ਨੂੰ बड़े प्रेम नाल, और जथे विच सिंह जिहड़े सन भगत जी का गुरमुखां वाला सुभाव वेख के, निमरता वाला सुभाव वेख के ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ इच्छा भी होया करती सी कि भगत जी कोलों ही संथ्या करनी। सो भगत जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गुरबाणी की शुद्ध संथ्या करवाई। बहुत वड्डा उन्हां दा परोपकार है। देश और विदेशों में उन्हां तो संथ्या करने वाले सिंह अजकल बहुत थावां ते कथा की सेवा भी निभा रहे हैं, गुरमत का प्रचार भी कर रहे हैं। सो ये उन्हां दा परोपकार है। भाई गुरदास जी का फरमान है, जैसे कंचन के साथ मंदिर उसार दीने, तैसा पुन एक गुरसिख को गुर शब्द सिखाएगा। जिहो जे सोने दे 7 मंदिर महल बना के कोई व्यक्ति एडा वड्डा धनी होवे दान कर दवे, गुरसिख नूं उस दा फल किन्ना मिल जांदा कि धनी बंदा तो धन नाल दान कर देगा सोने का, सोने दे महल बना के, गरीब दान नहीं कर सकता। गरीब दे मन में इच्छा पैदा होंदी है कि मैं भी इहो जिहा दान करा। गुरबाणी ने भाई गुरदास जी ने हर एक लई समानता रूप दे विच कैसा सुंदर निर्णय दे दिता कि गरीब दे मन दे विच कदे ऐसा ख्याल ना आए कि मैं असमर्थ हाँ। भाई गुरदास जी कहते भाई तू गुरबाणी की शुद्ध संथ्या करके एक किसी गुरसिख नूं गुरबाणी का शब्द सिखा दे, गुरबाणी के शब्द की एक शब्द की शुद्ध संथ्या करा दे, एक शब्द का कीर्तन सिखा दे, तैनूं भी उन्ना फल मिल जाएगा, उस तो भी अधिक फल मिल जाएगा। इन्ना परोपकार भगत जी ने अपने जीवन विच कीता कि हज़ारां ही ਸਿੰਘਾਂ नूं उन्होंने गुरबाणी की संथ्या करवाई। बहुत उच्चा सुच्चा जीवन, गुरमुखां वाला जीवन उन्हां दा, और निरछाल निर्वैर जीवन उन्हां दा सी। सो साध संगत जी उन्होंने जिन्ने भी सिंह आ गए अमृत वेले नितनेम तो उपरंत रात नूं बराजण तक लगातार वो गुरबाणी की संथ्या कराउंदे रहे। और पिछले कुछ समय तो उन्होंने शरीर विच ढलियाई आई। दास ने भी उन्होंने हाल चाल जानन दिया यतन किया, पुछया। सो वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहन लगे कि जो परमेश्वर दी गुरु साहब की रजा है, इस करके उस वाहिगुरू दे भाने विच प्रसन्न रहे। साध संगत जी मैं उन्हां दी तुहानूं एक खासियत तुहाडे अगे बयान करदा हाँ कि ज्यों वो जथे विच आए, जिहो जे जथे विच उन्हां नूं वस्त्र मिलदे रहे, ओहो जे वस्त्र उन्होंने पाए। बाबा जी के समय भी दास ने कई बारी उन्होंने कहना, भगत जी तुहानूं चंगे तो चंगे वस्त्र बना दईए, होर किसी चीज़ की लोड़। कहना नहीं, मेरे कोले वस्त्र बहुत वधिया,
सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई मैनू कमी नहीं है। इन्ना सबर ते सिदक वाला गुरमुखां वाला जीवन कि जिहो जे वस्त्र जथे दे ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ बाबा जी दे ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹੀ ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ। जो प्रशादा लंगर विच बनना उही लंगर उन्होंने छकना। इन्ना सबर सिदक किसी बिरले गुरमुख दे विच हो सकता, नहीं तो दो चार बंदियां नूं बंदा संथया कराउंदा ते बड़ियां लालसावां अगे रखण लग जांदा। पर मैं उन्हां दे जीवन नूं अज धन कहांगा कि धन सन भगत सुच्चा सिंह जी, जिन्हां ने गुरमुखां वाला जीवन, गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमुखां वाला जीवन उन्होंने जीविया। कदे भी उन्होंने संसार के पदार्थों की, कोई माया की, कोई वस्त्रां की, कोई पदार्थों की इच्छा नहीं रखी। फिर उन्होंने कदे ये लालसा नहीं रखी कि दुनिया में मेरा सन्मान या वडियाई होवे। दास ने उन्होंने पिछले साल बेनती की, भगत जी तुहानू जथे विच आया 51-52 साल हो गए, एक दिन की छुट्टी नहीं तुहाडी, एक दिन की भी, और मुड़ के अपने घरे नहीं गए। ठीक है, परिवार ने आना मिल जाना, भरावां ने संबंधियां ने किते खडूर साहब जाना, दर्शन करन जा आना, पर विशेष रूप दे विचों जथे विचों कदे घर विच लम्मा समा रहन वास्ते भी छुट्टी लैके नहीं गए। मैं बेनती की, तुहानू 51-52 साल हो गए। आपां गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता दा 50 साला हैडकुआटर दा स्थापना दिहाड़ा मनाउणा ते मेरा फुरना है। तुसी पुराने ਸਿੰਘਾਂ विचों बड़ी वड्डी सेवा कीती है, जथेबंदी वालों तुहाडा विशेष सन्मान किया जाए। कहन लगे जिमें तुहाडी मर्जी, मेरी तो कोई इच्छा इहो जी है नहीं। इन्ना उन्हां दा गुरमुखां वाला जीवन मैं देखिया। और फिर उन्होंने 25 अक्तूबर नूं विशेष वड्डे समागमां दे विच वो सन्मान विशेष रूप दे विच दिता गया। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी वालों, हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी वालों, जथेबंदी वालों, तो साध संगत जी मेरे कान विच कहन लगे, कहंदे मैं ये सन्मान दे योग नहीं, हकदार नहीं। तुसी मेरे उत्ते बहुत वड्डा ये सन्मान करके एक किस्म का मैं ये समझदा हाँ कि मेरे सिर ते भारी भार है। मैं कहा नहीं भगत जी, लोकी सिफारिशां करके सन्मान लेंदे है, दुनिया पैसे दे के सन्मान लैंदी। अजकल लोगों का वतीरा ही ऐसा है, तुहानू एक सन्मान नहीं, जे हज़ारां सन्मान भी तुहानू दईए तुहाडी सेवा अगे, तुहाडी घालना अगे, तो वह भी थोड़े तो थोड़े। साध संगत जी इहो जिहा उन्हां दा जीवन, शरीर करके भावें ढलियाई आई। ज्ञानी जोबन सिंह जी ने उन्हां दी बड़ी सेवा की अखीरले समय। होर भी विद्यार्थियों ने मिल करके सेवावां कीतियां। मैं ज्ञानी जोबन सिंह जी का, छोटे छोटे भटंगी का, भटंगियां का, ਸਿੰਘਾਂ का भी मैं दिलों दिल दीयां गहराइयां विचों धन्नवाद करदा कि इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने भी बहुत भगत जी की सेवा की। रात दिन इत्थे गुरुद्वारा साहब भी और हॉस्पिटल च 1-2 दिन ही उन्हां दा शरीर रहा। और साध संगत जी सारी सेवा ਸਿੰਘਾਂ ने बड़े प्रेम नाल करते रहे। जथेदार बाबा अजीत सिंह जी ने जदों किते थोड़ा बहुता ज़्यादा ढलियाई आउणी मैनूं दसना, उदों ही बाबा अजीत सिंह जी ने उन्होंने श्री अमृतसर साहिब हॉस्पिटलों में चैकअप कराउण लई लैके जाना। भाव इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने बहुत प्रेम नाल उन्हां दी जिन्ने क श्वास पिछों शरीरक ढलियाई करके उन्होंने अपने लैना कीते, जिन्ने क श्वास उन्हां दे बचे उन्ने समय विच इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने बहुत प्रेम नाल उन्हां दी सेवा की। साध संगत जी, महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी एक बचन किया करते सन
कोई मनमुख साख्त बंदा चढ़ाई कर जाए ना, किसी मनमुख साख्त बंदे दे अंतिम संस्कार ते दमदमी टकसाल जथे का एक विद्यार्थी अमरधारी पंजां ककारां दा धारनी रहत बहत वाला सिंह उहदे संस्कार ते चलिया जावे ना, महापुरुष कहंदे वो नरकां चों पैण तो बच जांदा, उहनूं दुबारा महाराज मनुखा जन्म दे दिंदे है। तो जदों भगत जी का शरीर इशनान करा के इत्थों सिंह सामने दरबार अगे नमस्कार करा के संस्कार करने वास्ते लैके गए, तां इउं महसूस होंदा सी जिवें सारा जत्था नाल तुरिया जा रहा सी, जिवें देवते ते शहीद सिंह उन्हां नूं अंतिम विदायगी दे रहे होण। ऐसी गुरमुख आत्मा का जिहड़ा जीवन हुंदा साध संगत जी, उन्हां दे अंतिम समय किसी दाने पुरुष ने बड़ा सुंदर जिक्र किया है। वो कहंदा किसी मनुख दी रोजाना दी जिंदगी दा उहदा अभ्यास कह लो, उहदा जीवन कह लो, उहदी सुरती बिरती कह लो। कहंदे जे किसी मनुख दी रोजाना दी जिंदगी दा तुसीं कुछ पक्ष देखना होवे तां सुबह सुबह उस मनुख दे पास जाके मत्थे लगो ते सूरज चढ़न तो पहला पहला वेखो कि वो कर की रहा ते तुहाडे नाल किस तरह दे विचार कर रहा। कहंदे उहदे जीवन दियां विचारां तो उहदी करनी तो तुहानूं महसूस हो जाएगा कि मनुख किहो जे कर्मां वाला है, किहो जे कर्म कर रहा। ते कहंदे जे किसी मनुख दी सारी जिंदगी दा निचोड़ वेखना होवे कि इहने जिंदगी विच कमाया की, खटिया की, किहो जी जिंदगी जिउई है, तां कहंदे उहदे अखीरले समय उहदे कोले जाओ ते उहदे अखीरले समय ते उहदी सारी जिंदगी दा निचोड़ पता लग जांदा कि इह किहो जिहा बंदा सी, किहो जी आत्मा सी। सो भगत जी का कैसा जीवन सी, अखीरले समय तक गुरबाणी नाल जुड़े रहे, नितनेम नाल जुड़े रहे और शांत चित होना बड़ा कठिन है। शरीर नूं तकलीफ भी होनी पर उन्हां दे चेहरे ते असीं कदे महसूस नहीं कीता सी और वो बचन भी नहीं कोई तकलीफ जां दुख वाला करदे सन और पूरे खिड़े मस्तक उन्होंने वेख्या गया, शांत वेख्या गया। सो मैं तो उन्होंने जीवन विचों इहो ही कुछ वेख्या कि वो गुरमुख आत्मा सी, बड़ी निर्मल आत्मा सी। और उन्होंने साध संगत जी कहना बड़ा सुखैन है, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना चलते राख्यो चीत। दुनिया वड्डियां वड्डियां लोकां नूं सेवक कहण लग जाती है, ये बड़ा सेवक है जी, बड़ा गुरमुख है जी, बड़ी धर्मात्मा आत्मा है। पर साध संगत जी सेवक बनना बड़ा कठिन है। भगत जी ने सेवकां वाला जीवन बतीत किया, गुरमुखां वाला जीवन बतीत किया और अखीर तक ओढ़क तक अपने श्वासां की प्रीति गुरु नाल, सिक्खी नाल और जथेबंदी की सेवा विच उन्होंने निभा दी, सफल कर दिता और वो अपनी निभा के गए। ऐसा कोई निभण वाला जीवन विच कोई बिरला ही होया करदा, हर एक नूं ऐसा सुभाग नहीं मिलता। बहुत सिंह आउंदे है, विद्या पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं, पर निभण वाले कोई बिरले होंदे। निभण वालियां नूं अज याद किया जा रहा, उन्हां दे सन्मान दे विच, उन्हां दे सत्कार विच आपां सारे जुड़ के बैठे। सो साध संगत जी ऐसी महान आत्मा सन भगत सुच्चा सिंह जी, जिन्हां दे दुसहरे दे उत्ते आपां सतगुरु जी की हजूरी विच जुड़ के बैठे हो। उन्हां दे जीवन दे बड़े परोपकार, बड़े उन्हां दे करतब हन। उन्हां दे नाल विद्यार्थी विद्या पढ़न वाले जानते हैं समा लम्मा लाउण दा विचार नहीं है, इसलिए मैं संखेप विच थोड़ा समा ही आप जी दे चरनां विच हाजरी भरांगा। साध संगत जी तुम हर सेती राते संत हो, निभाहे लेहो मोह को पुरख बधाते, ओढ़ पहुँचावो दाते।
ਸੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ 3 ਸਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 52 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਰਗਾਹ ਸੁਰਖਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪੁੱਗੀਆਂ ਆਤਮਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਤਮ ਬਖਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ,
कि मनमुख किहो जिहा हुंदा, मनमुख दा सुभाਅ करतब किहो जिहा है, उहदी हालत दसी है। ते गुरमुखां दा जीवन किहो जिहा हुंदा, वो अखीर ते निचोड़ दिता। इस करके मनमुखां ते गुरमुखां दी हालत धन गुरु तेग बहादुर साहब जी अज दे श्री मुखवाक दे विच बख्शिश कर रहे हैं। रहाऊ दीआं पंक्तियां तो ये शब्द का सिद्धांत है, तो उही आरंभता का सिद्धांत है। सोरठ रागनी विच धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी परम पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नावा। सोरठ रागनी विच धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी परम पवित्र उपदेश की बख्शिश कर रहे हैं। मन रे कौन कुमत तलीनी। हे मना, रे तो भाव हुंदा है जीव, तू केड़ी खोटी मत लै ले। जाऊं कह लो मन दे विच, हे भाई मन दे विच तू केड़ी खोटी मत लै लई, खोटी मत धारण कर लई, खोटी सिक्ख्या नूं मन दा हिस्सा बना लिया। जिन्ने भी जीवन विच आपां कर्म करदे हां ना, ये सारे कर्म साध संगत जी अंकुर रूप दे विच साडे मन विच जाके ये वस जांदे हैं, मन का हिस्सा बन जाते। और फिर वो कर्म जेड़े है मन का हिस्सा बनने तो बाद वो फिर साडियां बिरतियां उहो जिहियां बन जांदियां। बंदा सत संगत दे विच जाके गुरमुख बन जांदा, को संगत दे विच जाके मनमुख बन जांदा। मन दे विच खोटी मत नूं लै के बंदा मनमुख बन जांदा। जिन्नी परमार्थ की साधना है, गुरमत की साधना है, सारी मन नूं खोटे सुभाव वल्लों रोक रोक के मोड़ मोड़ के गुरमत की सिक्ख्या नूं मन विच वसाउणा। और जदों मन विच ओह गुरमत की सिक्ख्या सहजे सहजे वसन लग जाती है, तो फिर उहदा असर जीवन दे विच हौली हौली उस सिक्ख्या का, उस गुरमत का प्रभाव जीवन दे विच पैण लग जाता। इस करके महाराज कहते, हे भाई, जां यूं कह लो हे मान, तू केड़ी खोटी मत को संगत विचों लै लई है, केड़े खोटे सुभाअ नूं मन का हिस्सा बना लिया, जां कुमति नूं तू अपने जीवन विच खोटी मत नूं मनमत नूं तू अपने जीवन विच वसा लिया है। परदारा निंदिया रस रचियो। खोटी मत केड़ी है? परदारा पराइयां इस्त्रियां दे रूप वेखण विच लगा होया है, और इसे तरह निंदिया करन विच लगा होया है। 24 घंटे निंदिया ही करी जाना। और इसे तरह रस केड़े है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषयां दे रस है। कन्ना विच वकारां दीयां गल्लां सुननियां, ये शब्द इस नूं कहा जांदा है। स्पर्श दा रस, वकार भोगणे, रूप वेखना, और शराब मास आदि ऐसियां निखित वस्तुआं दे रस लैना, और वकारां दी दुर्गंधी नूं ग्रहण करना। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषयां दे रस सूक्ष्म रूप दे विच तू इन्हां विच रचिया होया, भाव फसिया होया क्यों नहीं तू निकलदा। कहंदे फलाना बंदा इहो जिहा फस गया, उत्थों दा निकलना बड़ा मुश्किल है। ते महाराज कहंदे ऐ मना तू खोटी मत, परदारा निंदिया रस रचियो, इन्हां दे विच खुब गया, फस गया है। राम भगत नह कीनी। रमे वाहिगुरु परमेश्वर दी तू कदे भगती नहीं कीती, उहदा नाम नहीं जपिया, बंदगी नहीं कीती।
साध संगत जी, भगती और बंदगी का सब तो वड्डा एक निचोड़ हुंदा कि मन एकाग्र हो जाए। भगती बंदगी करदियां करदियां मन जुड़ जाए, मन एकाग्र हो जाए नाम विच बंदगी विच। और कितना समा एकाग्रता बनती है। तुसी जे 8 घंटे भी भजन सिमरन जाप करते हो ना, तो 8 घंटिया विच अभ्यासी पुरुषों का यह कथन है, परमार्थ दे पांधियां का कथन है कि 8 घंटिया विच 1 मिनट भी जे किते नाम विच मन एकाग्र हो जाए तो समझ लो 8 घंटिया की साधना तुहाडी सफल हो। 8 घंटिया की कीती मेहनत मशक्कत तुहाडी सफली है। इन्ना वड्डा एकाग्रता का फल दसिया, भाव मन जुड़ गया, मन एकाग्र हो गया। एकाग्र होए मन की निशानी की हुंदी है भी ऐन मन शांत हो गया। मन विच होर कोई कल्पना नहीं रही। नहीं साडी हालत की है, माला फिरती आत्मा जी फिरै मुख माहे, ठौर ठौर मनुआ फिरै ये भजन कतना है। कई बंदे सारी जिंदगी गुटका लैके पाठ करी जाते हैं ते मन पता नहीं उन्होंने कित्थे कित्थे तुरया फिरदा। कई सारी उम्र माला घसाई तुरे जाते हैं, मन 1 मिनट लिए भी एकाग्र नहीं हुंदा। कई घंटिया बंदी बैठे रहंदे आ चौंकड़ियां विच, मन फिर नहीं एकाग्र हुंदा। अखां बंद करके भी पखंड भी कई करन लग जाते हैं मेरे वर्गे, मन फिर भी एकाग्र नहीं हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी तुसी बाणी पढ़नी, माला फेरनी, नाम जपना, एकाग्रता विच बैठना छड्ड देना। ये साधन तो बिना तो मन एकाग्र होना ही नहीं। जे गुरबाणी पढ़ोगे ताई मन एकाग्र होएगा, जे अभ्यास करोगे गुर शब्द का ताई मन एकाग्र होएगा। ये साधन तो करने ही करने। पर तुसी कई बारी साध संगत जी एक देखो, किसी सिंह नूं गुरबाणी की शुद्ध संथ्या करा के वेखो, तुहाडा मन उदों ही एकाग्र हो जाएगा। गुरबाणी की संथ्या का एडा वड्डा फल है। विद्यार्थी तुहाडे कोलों संथ्या कराउण वास्ते आया, तुसी उहदी संथ्या कराउण लग गए, कराउंदियां कराउंदियां मन एकाग्र हो गया। जुड़ जांदा मन बहुत जल्दी, क्योंकि जे मन उस्ताद दा संथ्या कराउण वाले दा एकाग्र नहीं ना, तो विद्यार्थी नूं गुरबाणी शुद्ध संथ्या नहीं करा सकता। एक एक लाग कन्ना सिहारी बिहारी जां उचारण जदों विद्यार्थी करदा ना, जे संथ्या कराउण वाले उस्ताद दा मन एकाग्र है ना, तो विद्यार्थी नूं एक एक लग मात्र ते भी सुचेत करदा भी भाई तूं इत्थों गुरबाणी दियां लगा मात्रा छड्ड दित्तियां, इत्थों उचारण करना छड्ड दित्ता। संथ्या कराउण वाले नूं इन्ना वड्डा पुण्य मिल जांदा कि आया विद्यार्थी उहदे मन नूं एकाग्र कर दिंदा, गुरबाणी विच जोड़ मन जुड़ जांदा संथ्या कराउण वाले दा। धन बाबा मित सिंह साहब जी गुरुद्वारा माता साहिब देव कौर जी, वो महापुरखों नूं एक वेरी तख्त हजूर साहब जी दे जथेदार पुजारी हरनाम सिंह जी, साध संगत जी पहला हजूर साहब दे जथेदार नूं वड्डा पुजारी ते छोटा जिहड़ा हुंदा सी जथेदार नूं छोटा पुजारी कहंदे सी। पूजा करन वाला, गुरु महाराज दी सेवा करन वाला। होर पुजारी का भाव होर नहीं कोई है जिहड़ा पूजा करता है। धन गुरु अर्जन देव साहब कहंदे कई कोट होए पुजारी, पूजा सेवा करन वाले। ते वो तख्त श्री हजूर साहब जी दे जथेदार रहे पुजारी वड्डे, पुजारी जोगिंदर सिंह जी तो पहला उन्होंने सेवा की। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वालियां तो जथे विच रह के गुरबाणी की संथ्या दसम की संथ्या की। फिर बाबा मित सिंह जी के पास भी कुछ समा वो गुरबाणी की दसम की संथ्या दोबारा विचार दे रहे।
तो बाबा अमित सिंह जी महापुरखों का सुभाव बड़ा निर्मल और शांत चित्त सी। वो महापुरख ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ बड़े प्रेम नाल कराउंदे सी। लंगर विच चले जाना तो कई बारी प्रशादे वेलन लग जाना, पलटा करन लग जाना। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहना जी संथ्या करनी है, कहना भाई लियाओ पोथियां प्रकाश करो। लोह ते बैठियां ही पोथियां प्रकाश करा के संथ्या कराउण लग जाना। आप हत्थी सेवा करी जानी। इहो जे महापुरख सन करनी वाली आत्मा, हत्थी सेवा करनी। कई बार किसी सिंह ने वेखना बाबा जी झाड़ू दे रहे है माता जी के स्थान से, उन्हें कहना बाबा जी झाड़ू दे रहे हैं मैं ये सेवा करा। उन्हें कहना महाराज मैनू सेवा का मौका दो। चंगा भाई तुसी कर लो। आप जी ने दूजी थां ते जाके सेवा शुरू कर दी। लंगर दे विच लंगर पकाउंदियां, सब्जी तैयार करदियां, देग तैयार करदियां। जपजी साहब के पाठ तो बाद ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहना भाई लियाओ पोथी प्रकाश करो, संथ्या करो। वो फिर बाबा हरनाम सिंह जी ने एक दिन पूछा पुजारी साहब ने कि बाबा जी तुसी लोह ते बैठे भी संथ्या कराई जाते हो, सारा सारा दिन ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। कहन लगे पुजारी साहब ਜਿਹੜਾ सिमरन करीदा भजन करीदा ना वो तो एक वक्री साधना है। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गुरबाणी की संथ्या कराउण लग जाईदा उदों ही मन एकाग्र हो जाता, उदों ही मन जुड़ जाता, उदों बिरती गुर शब्द विच लीन हो जाती है। कहंदे एडा वड्डा फल है भी बंदा सारी जिंदगी तप करे तां भी बंदे दा कई बारी मन नहीं एकाग्र हुंदा, रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जांदियां, मन नहीं एकाग्र हुंदा। पर संत बाबा अमित सिंह जी कहन लगे भी पुजारी साहब संथ्या जदों कराउण लग जाईदा उदों ही मन बाणी विच ते सिमरन विच लीन हो जाता, मन एकाग्र हो जाता। इस करके असें मन की एकाग्रता का जिहड़ा सब तो वड्डा साधन देखिया ना जीवन विच, वो गुरबाणी की संथ्या कराउण वाले का सब तो वध मन एकाग्र हो जाता। जिहड़ा गुरबाणी की शुद्ध संथ्या करा उन्होंने बहुत वड्डा गुरबाणी की संथ्या कराउण का फल मिलदा। इस करके साध संगत जी गुरमुख जिहड़ा बाणी पढ़न वाला, नाम जपण वाला, संथ्या कराउण वाला भगत जी वर्गा गुरमुख, उन्हां दा मन किन्ने किन्ने घंटे एकाग्र हुंदा होएगा, किन्ने किन्ने घंटे लगे रहिंदे सन ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गुरबाणी संथ्या कराउण ते किन्ने घंटियां की एकाग्रता होएगी। बंदा 5-7 मिनट की एकाग्रता का साधन कर लवे तो लोग बड़े 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 चमत्कार दिखाउण लग जाते हैं। जादू करन वाले बड़े चमत्कार दिखा देंदे है, दुनिया भी हैरान हो जाती है। केवल उन्हां दे मन की एकाग्रता की साधना का वो करिश्मा है। पर जिन्हां दा घंटियां बद्धी सारा सारा दिन बाणी विच मन जुड़िया रहा, वो किन्नियां महान निर्मल आत्मावां होणगीਆਂ। उन्होंने मन दे विचों खोटी मत नूं दूर कर दिता, गुरमत नूं उन्होंने हिरदे विच वसा लिया। इस करके वो राम की भगती उन्होंने की। हुण इसे शब्द का इस तरह भी ला लो भी राम भगत रस रचे, अन्नवें अर्थ करन दी भी परंपरा है। खंड कानवें दंड कानवें, ये 98 की जिहड़ी परंपरा दमदमी टकसाल दे महापुरख संत बाबा हरनाम सिंह जी बेदी, जिहड़े संत बाबा बिशन सिंह जी मुराले वाले तो पहला 9वें मुखी होए, उन्होंने गुरबाणी दे 98 अर्थ करन की परंपरा की शुरुआत सिख पंथ विच कीती। ठीक है, 98 का उचारण सनातन धर्म के ग्रंथां विच कीता जांदा, सुरतियां उपनिषदां दे टीके करदे आ। पर गुरमत विच 98 की परंपरा दमदमी टकसाल दे 9वें मुखी संत बाबा हरनाम सिंह जी बेदी जी दे समय आई। सो जे 98 करो ना, राम भगत रस रचियो, राम दी भगती दे रस विच जेड़ा रच गया मिल गया भगत जी वर्गा, वो परदारा निंदिया न कीनी,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਾਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਨ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਥ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਥ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ, ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਧਨ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀਵ। ਔਰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ, ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ ਸੁਤਾਰਾ ਪਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਇਉਂ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਨਿਸਫਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਨਿਸਫਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚੇ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਵੱਜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਨਿਸਫਲ ਚਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, 84 ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 84 ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਣਕ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਾ ਕਰਤੱਵ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਅਗਰਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ।
परोपकार नित चितवते नाहि कछ पोट। साध संगत जी, मनुखा जीवन जिहड़ा ये जे तां पशुआं वर्गा बतीत कर लिया, फिर तां साडे विच ते पशुआं विच कोई फर्क नहीं। परमेश्वर की दित्ती दात नाल बेइनसाफी है, इंसाफ नहीं है किसी भी तरह का। परमेश्वर ने तो मनुखा जीवन परोपकार वास्ते जां भई प्राप्त मानुख देवहरिया गोबिंद मिलन की तेरी बरिया इस वास्ते दिता। पर जे परोपकार ही ना किया जीवन विच, वाहिगुरू दे दर दी सेवा भाव भगती नहीं की, फिर कहंदे पशुआं विच ते मनुख विच कोई अंतर नहीं है। नरन ज्ञान ने जद कता ज्ञान बिना पस जान। पशुआं वर्गा जीवन बतीत करके बंदा तुर गया। सेवा परोपकार करना, इस करके परोपकार नित चितवते नाहि कछ पोट। जेडे नेता प्रति परोपकार की चितवनी विच लगे रहंदे है कि परोपकार ही करना, भला ही करना, उन्हां दे उत्ते किसी भी पोच पाप का असर नहीं पै सकता कदे भी। वो आत्मावां निर्मल हो जाती, पवित्र हो जाती। इस करके महाराज कहते ना हर भजे ना गुरजन सेवियो। हरि का भजन भी नहीं किया, गुरु दे दर दी सेवा भी नहीं की, जन गुरसिखां दी प्रभु दे प्यारियां दी सेवा जिवें भगत जी परोपकार करते रहे, वो परोपकार भी नहीं है बंदे तू कीता है। नह उपजो कछ ज्ञाना। ऐसे करके वाहिगुरू दी प्राप्ति दा ज्ञान तेरे अंदर पैदा नहीं होया। उस ज्ञान तो बिना मुक्त पंथ जानो तो नाहन मुक्ति दा रस्ता तेनू नहीं प्राप्त होना सी। घट ही माहे निरंजन तेरा। तेरे हृदय विच माया रूप कालख तो रहत परमेश्वर वाहिगुरू वसदा है। घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार ऐसी उन्हें कृपा की है। वसदा तेरे हृदय विच ही है। तै खोजत उद्याना। तू उद्याना जंगलां दे विच बियाबान उडाड़ां दे विच परमेश्वर नूं लभदा फिरदा भी शायद उत्थे बैठा है परमात्मा वाहिगुरू परमेश्वर। मन रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहते हैं, हे मन ऐसा सन्यास धारण कर लै कि जिहड़ा तेरे अंदर हृदय च वसदा ना, उसनूं जंगलां विच लभण वास्ते ना तुरिया। इस करके हृदय विच ही वाहिगुरू वसदा, तैनूं होर किते उद्यान बियाबान जंगलां दे विच जां यूं कह लो भी बियाबान जंगलां वर्गे जिहड़े साधन सन, बड़े कठिन साधन सन। पुट्ठे लमकणा, धूणियां तौणियां, दरियावां दे उत्ते किनारियां किनारियां उत्ते भरमण करी जाना, उद्यान वर्गे ऐसे जिहड़े साधन सन उन्हां विच खोजदा रहा पर मिलिया नहीं। मिलना उन्हें कित्थों सी? हरि दा भजन करके, गुरु दी सेवा करके। वो तां तैनूं संसार रूप जंगल दे विच ही वाहिगुरू लभ जाना सी। जीवां दे अंदर ही तैनूं घाटी माहे घटां घटां दे विच, घट हिरदे विच भी, घट हर प्राणी मात्र दे विच भी, घट हर थां विच, जरे जरे विच। वो परमेश्वर हर थां ते व्यापक है। उस नूं नहीं तू वेख्या, उस दी तू प्राप्ति नहीं कीती। को संगत रूप उद्यान दे विच, को संगत रूप बियाबान जंगलां दे विच, औगणां दी वकारां दी संगत जिहड़ी सी, एक वड्डा उद्यान सी, बियाबान उडाड़ सी, इन्हां दे विच ही फसिया रहा। बहुत जन्म भरमत तै हारियो। बड़े जन्म तू भरमदे आ। भरम की है? चक्कर लाउंदे आ 84 लाख जूनां दे विच, नरकां दे विच, आवागमन दे चक्कर दे विच भरमदे आ। तेरा ये जीवन हार गया। मनुखा जन्म की बाजी नूं तू गवा लिया, जित नहीं सकिया। अस्थिर मत नहीं पाई। जिथों तेरी मत स्थिर होनी सी, भटकना मुकनी सी, भटकना तेरी खत्म होनी सी। कहंदा मन भटकदा, एक पल की शांति नहीं। नितनेम कर रहे हैं जी,
मन भटकी जाता, बाणी पढ़दा जी मन भटकी जाता, संगत विच बैठा कीर्तन कथा सुनदा मन भटकी जाता, मन स्थिर नहीं हो रहा। ऐसी मत सिक्ख्या जां यूं कह लो ऐसा मत उपदेश गुरु दे कोलों तू प्राप्त नहीं किया जिहदे नाल तेरा मन स्थिर हो जाता, टिक जाता, मन एकागर हो, गुरु दे विच लीन हो जाता, तेरी भरमना मुक जाती। वो जिहड़ी ऐसी मत सी शुभ सिक्ख्या उपदेश वो गुरु साहब दे दर तो ना हर भजन गुरजन सेवियो, ये जिहड़ी सिक्ख्या सी वो नहीं तू धारण कीती है, वसाउणा नहीं कीती। मानस देह पाए पद हर भज, महाराज कहते मनुखा देह एक पदवी है, बहुत वड्डा मनुखा जीवन नूं सतगुरु जी ने सन्मान दिता। मनुखा जीवन की बहुत वड्डी महिमा सतगुरु जी ने गुरबाणी विच कथन की। महाराज कहते जिहड़ी मानस मनुखा देह है एक पदवी है, 84 लाख जूना विचों सब तो उत्तम वड्डी एक पदवी मिली है। 84 लाख जून विच उत्तम जन्म सो मानस देही। भाई गुरदास जी कहते 84 लाख जूना विचों सब तो उत्तम पदवी मनुखा पदवी है। इस मनुखा देह की पदवी तैनूं प्राप्त हो गई। 84 लाख जूना की भटकणा विचों वाहिगुरू ने तेरे उत्ते परोपकार कर दिता, तैनूं 84 लाख जूना विच पैण तो बचा लिया। तू कां कुत्ता नहीं बनिया, तैनूं वाहिगुरू ने किन्ना सोहना मनुखा जीवन दिता। और इनू पा के मानस दे पाए पद हर भज। वाहिगुरू परमेश्वर जो हरि है उस परमेश्वर दे नाम दा भजन कर, ओदा सिमरन कर, ओदा भज नाम कीर्तन कर उस वाहिगुरू दा अठे पैर। इस करके जे तू ये मनुखा दे पाई है ना, इस मनुखा देह नूं प्राप्त करके वाहिगुरू दे नाम दा भजन कर, सेवा कर, परोपकार कर, फिर ऐसी पदवी तैनूं मिलेगी ते तू परमेश्वर दा रूप बन जाएगा। पद हर, पद ते हर नूं दोनां नूं सुमेल कर दिए, फिर हरि दी पदवी तू प्राप्त कर लवेगा, उहदा रूप बन जाएगा। हर का सेवक सो हर जेहा भेद न जानो मानस दे। ऐसी तेरे उत्ते कृपा होवेगी। सतगुरु कहंदे नानक बात बताई। धन गुरु तेग बहादुर साहब की समाप्ति ते कृपा करके बख्शिश कर दे भी यही तेनू गुरमत का बात बचन उपदेश तेनू दसिया है, समझाया है, सिक्ख्या दिती है कि मनुखा देह नूं पा के हरि दा भजन कर। ते जिन्हें कहते इस बात इस विचार नूं इस उपदेश नूं गुरु द्वारा दसी हुई सिक्ख्या नूं मनुखा देह दे विच पा लिया। पहला बचन आया सी मन रे कौन कुमत तै लीनी उपकर्म उपसंहार। ये सतगुरु जी शब्द की समाप्ति ते कर रहे हैं कि मन दे विच तू खोटी मत लै लई। पर महाराज कहते भी हाँ अखीर ते उसे मन विच मानस तो मन कह लो, मनु तो सृष्टि की रचना होने करके सनातन धर्म वालियां ने मानस नाम पा लिया इसका। और इस्लाम वाले कहते आदम तो सृष्टि का पहला मनुख पैदा होया उतों उन्होंने आदम कल्प लिया, जितों आदमी पद ले लिया। पर सतगुरु महाराज इत्थे कह रहे हैं कि ऐ जीव तू खोटी मत नूं त्याग के जदों गुरु दी दसी हुई इस सिक्ख्या नूं तू अपने मन विच पा लिया, अपनी देह विच पा लिया, भाव धारण कर लिया, फिर तू आम मनुख मानस नहीं रहेगा। तू हरि दा रूप बन जाएगा। हरि दी अपना स्वरूप बनाउण दी परमेश्वर दी वो पदवी हर का सेवक सो हर जेहा, वो पदवी तेनू वाहिगुरू दा स्वरूप बनन दी प्राप्त हो जाएगी। जिन्हां ने
इस तरह भगत सुच्चा सिंह जी वर्गे गुरमुखां वर्गा जीवन जिन्हां ने अपना सफला किया ना, उन्होंने असल मनुखा जीवन के मायनिਆਂ ਨੂੰ समझ के परोपकार करके सेवा सिमरन भजन करके गुरु के दसे हो उपदेश नूं कमाउंदियां होया अपना जीवन वो सफल करके वाहिगुरू की दरगाह विच परमेश्वर के प्यारे बने हैं। सो साध संगत जी मैं समा होर ज़्यादा ना लवां। भगत जी के दुसहरे ते जिन्नियां भी संगतां आईयां सारियां दा रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हां दे बहुत विद्यार्थी संगत दे विच बैठे है, वो भी भगत जी की याद विच जुड़े हुए हैं। जथेबंदी नूं बड़ा वड्डा घाटा ऐसे गुरमुखां दे जाण दा, क्योंकि इहो जे सिंह हज़ारां दी बराबरता करते हैं। इस करके जथेबंदी नूं बहुत वड्डा भगत जी दे अकाल चलाने का घाटा पिया। कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी की जथेबंदी है, वो आप ही कृपा का हथ रखन, मेहर भरी कृपा भरी बख्शिश जथेबंदी उत्ते बनाई रखन। अज दे दीवान विच संत बाबा सज्जन सिंह जी गुरु की बेर साहिब वाले, संत बाबा गुरभेट सिंह जी बुलारे संत समाज, संत बाबा चन्नन सिंह जी, संत बाबा सुखवंत सिंह जी टननकियां वाले सुबह तो ही हाजरी भर रहे हैं। इस तरह ज्ञानी गुरदेव सिंह जी तरसिक्के वाले, साडे बहुत सत्कारयोग धन बाबा विधि चंद साहब जी की अंश बंश, संत बाबा बंता सिंह जी मुंडे पिंड वाले जो कौम के महान विद्वान हैं। और संगत विच हुणे थोड़ा समा पहला संत बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल वाले पहुंचे हैं। उन्होंने भगत जी के कोले रह के गुरबाणी की संथ्या आरंभ की। जदों जथेबंदी विच बाबा जी के समय आए, सब तो पहला भगत जी कोलों उन्हां दी गुरबाणी की संथ्या आरंभ हुई और सतगुरु महाराज जी की उन्हां ते कृपा हुई। उन्होंने संगतां ने बड़ा सन्मान दिता। दमदमी टकसाल का कोई भी विद्यार्थी जदों किसी पंथ की वड्डी सेवा दे विच जांदा तां जथेबंदी नूं इह बहुत वड्डा माण हुंदा। साध संगत जी जिवें जथेबंदी विचों सिंह पढ़ के कोई सचखंड श्री हरमंदर साहब के सिंह साहिब, तख्तां दे जथेदार और गुरधामां दे वड्डे वड्डे कथावाचक, सो सानू भी ये माण महसूस होंदा कि संत बाबा बलजीत सिंह जी अजकल हरियाणा श्रोमणी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान उन्होंने बनाया गया। सो भी भगत जी के स्नेह नूं मुख रख के संगत दे विच पहुंचे है। मैं जथेदार बाबा अजीत सिंह जी का और इस तरह जथेदार भाई कृपा सिंह जी का, इन्हां सारे सिंघां दा रोम रोम करके जथेदार भाई जरनैल सिंह जी, इन्हां सारे सिंघां दा धन्नवाद करदा। समा बहुत संकोचना, क्योंकि अज जो केंद्र की सरकार है, वैसे तो दिल्ली तख्त ते जिन्नियां भी सरकारां अज तक बैठियां, किसी ने सिख पंथ नाल जां सिख कौम नाल कोई इंसाफ नहीं किया। समय समय कौम नूं जबर दा निशाना बनाउंदे रहे। पर पिछले दिनी बड़ा दिल्ली तख्त दे वारसां ने कह लो जां दिल्ली दी सरकार ने एक बड़ी वड्डी बेइंसाफी की कि पंजाब दे किसानां नाल बड़ा धरोह कमाया। पंजाब ना कहो, सारी हिंदुस्तान की जिन्नी भी किसानी है, साध संगत जी का ऐसा आर्डीनेंस जारी कर दिता, कानून बना दिता जिहदा जिमींदारां दे हक्कां दे उत्ते बहुत वड्डा इन्हां ने छापा मारिया, यूं कह लो हक्कां ते डाका मारिया। और जिहड़े किसानी दे कानून जां संविधानक हक सन उन्हां नूं खत्म कर दिता गया। और जिहड़ियां फसलां ते जिणसां सन, क्योंकि किसानी का आधार फसल ही है। मैं तो ये कहांगा कि दुनिया विच जिन्ने भी कोई पूंजीपति है, कोई भी दुनिया विच रोजी रिजक के साधन है, वो सारी सृष्टि विच किसान तो शुरू होंदे। जे किसान नहीं बचेगा तो दुनिया दे विच कोई भी किसी भी तरह दे
वो भावें कोई पूंजीपति है, भावें कोई मजदूर है, भावें कोई धनाड़ है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरियां चाकरियां करने वाले है, सारा कुछ ही तबाह हो जाएगा। इसलिए अज पंजाब बंद दा समुचे किसान वीरां वल्लों सदा दिता होया और दास ने भी साध संगत जी एक थां ते जाके इत्थों नेड़े उस प्रोटेस्ट दे विच हाज़री भरनी है। तो मैं आग्या लै लैनी आप जी कोलों। साडा सारियां दे फर्ज बनदा है जदों जदों कोई भी इहो जिहा सरकार धक्का करदी है उहदे खिलाफ आपां आवाज़ उठाईए और एकता का सबूत दईए। जे कौम सारी साध संगत जी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी के समय एक हो जाती ना, सारी कौम एकता का सबूत दंदी, तो कदे दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब ते हमला नहीं सरकार कर सकती। ये साडी फुट कह लो, कमजोरी कह लो, साडी एकता की वड्डी घाट कह लो। कौम की एक त्रासदी है कि कौम दे विच अज बेविश्वासी बहुत बनी हुई है। एक दूजे प्रति नफरत, एक दूजे प्रति मन विच वैर विरोध, ये बहुत वड्डा एक दुखांत है साडी कौम का, साडे पंथ का। जे असीं वड्डियां तो वड्डियां मुश्किलों का मुकाबला करना जां उन्हां दे हल लभदे हैं तो सानू एकता की लोड़ है। एकता नाल असीं वड्डियां वड्डियां तख्तां नूं भी गोडने पर नहीं असीं कौम दे अगे कर सकते। सो साध संगत जी, सो किसानां दे जिमींदारां दे अंदोलन की भी असीं पूर्ण रूप दे विच हमायत भी करते हाँ, उन्हां दा साथ भी दिंदे हाँ। सो मैं जिन्ने भी सत्कारयोग सिंह संगतां आईयां सब दा ही बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सन्मानयोग सत्कारयोग ज्ञानी जीवा सिंह जी नूं बेनती करांगा कि कथा तो बाद थोड़ा समा प्रोग्राम नूं चलाउण, उस तो बाद समाप्ति की जाए, क्योंकि जे आपां सारिआं नूं बुलाउण लग गए तो फिर तो इत्थे 3-4 वज जाणगे। इस करके लम्मा समा ना लाइए। 19 कोविड महामारी कोरोना वायरस भी फैलिया होया, उतों भी डॉक्टरां दी दसियां हदायतां मुताबक सानूं सुचेत रहण दी लोड़ है, बहुत सुचेतता ही रखो। इस करके मैं सत्कारयोग ज्ञानी जीवा सिंह जी नूं बेनती करांगा कि वो अगला प्रोग्राम सारा संगतां नूं दस्सण ते आप सारिया संगतां ने कड़ाह प्रसाद की देग लैण तो बाद लंगर छक के फिर जाना। ये दास की बेनती प्रवान करनी, भुलां चुकां खिमा करनिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। बहुत जन्म भरत तै हारियो, अस्थिर मत नहीं पाए, मानस देह पाए पद हर भज, नानक बात बता